Rao sir, every HHFian wants to sing this song for you. And the song is... मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। Love you master, and wish you very, very happy birthday. All, this is Dr. Mahesh Mahajan once again from HHF, and HHF is Hahnemanian Homeo Forum, founded by our beloved master Dr. Milind Rao sir. And today, 14th of May, is his birthday, and I salute for his dedication, devotion and passion towards homeopathy, towards his students. He has nurtured around thousands of homeopaths across Maharashtra and in India. And this video with Dr. Yashwant Patil, I just dedicate to my master, our master, Dr. Milind Rao sir. And this is how he used to teach homeopathy to all of us. This is one of the just glimpses of Rao master. Just stay tuned and enjoy. Happy birthday, master. Love you. Hi all. What a day to celebrate for HHF. Dr. Milind Rao sir's birthday, 14th of May. Milind Rao sir was not just a homeopath, a person, a president of HHF. He was an idea. He was an idea full of growth, integrity. And I don't have any words. Yoshan, तुला आपको कुछ बोलना है उनके बारे में, कुछ राव सर के बारे में, कि जो हम लोगों ने राव सर से होम्योपैथी नहीं सीखी, हम लोगों ने राव सर से ना जिंदगी सीखी, कि कैसे जीते हैं यार, क्या करना है, कैसे करना है. On I take this opportunity to introduce this favorite, one of the favorite, I will say, sorry, because I was also his favorite. There are so many favorites of master. He was one of the favorites of our master Milind Rao sir. And believe me guys, he was sitting just besides master, and I will be proud and more than happy to introduce Dr. Yashwant Patil from Jalgaon, HHF, the pillar of Jacks, Jalgaon, Akola, Khamgaon and Shegaon. The man with full of courage, loud, bold and clear. Okay, so I would like to ask Yashwant Patil, इसने क्या किया ना, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे रेमेडीज इवॉल्व किए. हम लोग HHF में ना हमेशा एक रेमेडी इवॉल्व करते, तो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर यशवंत पाटिल to evolve one beautiful remedy from his वो पैंडोरा बॉक्स में से एक अच्छी रेमेडी. और ये राव सर को ट्रिब्यूट होना चाहिए. यस बिल्कुल. तो राव सर के स्टाइल में, राव सर के बच्चे, राव सर के दिन में, सब लोगों के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी. सुनो अभी क्या है यशा, बिफोर यू स्टार्ट, मैंने सीधा बोल देता हूँ, ये तू प्लान किया था ऑलरेडी. टैक्सेस बकाटा. यस, टैक्सेस बकाटा. For those who are non-HHFians, this is a remedy which I was also not knowing when he took taxes bakata with Dr. Joel Solomon, if I am not wrong. Yes. And KY is also doing wonderful job in that taxes. So before that we don't know what is taxes bakata, a rare remedy what we used to think about. But अभी देखोगे तो, ये सुनोगे ना, तो तुम लोगों ने ये मैंने कितने मिस किए. The remedy, a toxin, poisonous plant, बोला ना, केंट सर ने प्रूव की हुई है, poisonous plant है. कैसे? तो let us understand that mind, body and the soul axis. What is this toxin? This poison taxes bakata. क्या poison है?
लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम यशा यशा कुछ कैसे करना, एक आधी छोटी सी केस बताएगा तो भी चलेगा, नहीं तो तेरे को उस रेमेडी की जैसे तू केस बताएगा तो ही लोगों को, क्योंकि सी इट्स नॉट अ वेरी इजी रेमेडी टू एक्सप्लेन। एक केस छोटा सा केस। यस हाँ जान दे राव सर। यस एक 22 साल का लड़का मेरे पास आया था, उसको बहुत पेन था, रीनल स्टोन, आके बैठा मेरे सामने, उसके साथ उसके पापा थे। उसका पापा मेरा बहुत पुराना पेशेंट, तो उसके पापा को मालूम था कि अभी डॉक्टर इसका पूरा चीरफाड़ करेगा। होम्योपैथ तो ऐसे ही करते हैं एज यूजुअल। तो उसके पापा ने बोला सीधा मुझे कि यार सर आप उसको देखो, मैं निकलता हूँ बाहर। मैंने बोला नहीं रुको, ये क्यों बता रहे हैं ना सर कि हम लोगों को ना हमेशा ना सॉरी है यशवंत, यस क्या है ना केस टेकिंग ना, अभी मैं यशवंत को 14 मई को मैंने क्यों सिलेक्ट किया ना, क्योंकि यशवंत हैज दैट सेंसिटिविटी। तो आई अपील एवरी होम्योपैथ कि ना तुम लोगों का ना वो सेंसिटिविटी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए अपने पेशेंट्स के प्रति। तो इसने सब ये क्यों स्टार्ट से क्यों बता रहा है कि डैडी को बिठाओ, ये सब क्यों बता रहा है, वो सब केस में बाद में आएगा, इसलिए सब चीज़ें आएगी बाद में। तो उसका पापा को मैंने बोला कि तुम बैठो, मुझे लगा तो आपको बोलूँगे कि आप जाओ। उस बच्चे को बोला कि क्या तकलीफ हो रहा है, कुछ नहीं, स्टोन था तो बहुत पेन हो रहा है, और वो 9 mm का स्टोन था। उसने दिखाई यूजी मुझे कि सर इट्स 9.8 mm स्टोन। तो मैंने उसको सीधा सामने से बोल दिया कि यार क्या इतना गुस्सा क्यों है तुझे, ऐसा सामने से एकदम तो बोल दिया। तो वो एकदम नहीं, गुस्सा बिस्सा नहीं है मुझे, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा वो बच्चा बोल रहा है। उसी टाइम उसका पापा उठ के खड़ा होके बाहर चला गया। मैं समझ गया कुछ तो भी लोचा है। मैंने उसको नेक्स्ट सवाल पूछा कि तेरे घर में कौन कौन है। बोला कि मम्मी पापा दादी है। तो बोला तेरे घर के लोगों के साथ कितने लोगों के साथ जमता है। उसने बोला जमता है ऐसा तो कुछ नहीं बोले, किसी के साथ जमता नहीं है मेरा, सामने से बोल दिया। मैं समझ गया इसका पापा बाहर निकल गया, मतलब ये कॉम्बिनेशन था उधर। तो इसलिए मैंने सोच के उसको फिर वही सवाल पूछा कितने लोगों के साथ तेरा जमता है। तो बोला किसी के साथ नहीं जमता है। बोला क्यों नहीं जमता है आज। उसने बोला कि आजकल किसका किसी के साथ जमता है। बोले तेरे पापा के साथ। सर 90% घरों में बाप और बेटी की जमती ही नहीं। बोले सर ये तो ट्रेंड ही है ये चीज। और फिर मम्मी के साथ, पापा के साथ नहीं जमती तो मम्मी तो उसकी वकील है ना। बोले तो उसके साथ तो जमेगी नहीं। बोले सुनो वर्ड्स के साथ तो जमेगी नहीं। और दादी के साथ, दादी बॉस थी ना। बोले अभी, और बॉस का और दूसरे बॉस का कैसे जमेगा। मैं मेरा खुद का बॉस हूँ, मेरा भी जमता नहीं। बोले उसके साथ। बोले क्या बात है यार, तो बहुत बढ़िया फैमिली तेरा। हाँ बोले सर बहुत बढ़िया है। तो उस टाइम मुझे उस टाइम तक मैंने बहुत बार ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर चुका। तो मुझे समझ गया कि यार ये क्या चीज है। मैंने सामने से उसको पूछा कि और क्या दिक्कत तेरी जिंदगी में। दिक्कतें तो बहुत है। बोले सर वो सुन के आप क्या करेंगे। आपको मैंने बोला ना द माइंड द बॉडी एंड सोल एक्सेस इट इज अ टॉक्सिन ना। एक्सेस बकाटा इज अ टॉक्सिन, जहर है। वो जहर समझा, दिख रहा है क्या उसके भेजे के अंदर क्या जहर भरा है, देखा आपने। कि मुझे बोलो कि क्या करेगा यार तू सुन के, और उसका एज ओनली 22 साल का लड़का, और ऐसा बोल रहा है। बोला कि यार तेरे को ऐसे सीधे से बात करनी आती है क्या। मुझे तो आती है। बोले पर लोगों को समझती नहीं है, इसलिए मैं ऐसा ही बात करता हूँ। बोले क्या टेंशन है तुझे। टेंशन तो है। बोले सर थोड़ा कर्जा है, ये है वो है। बोले कर्जा कितना है। उसने एक अमाउंट बोला इतना कर्जा है। बोले तेरी इतनी उम्र कम है और तुझ पे कर्जा कैसे। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, तुझ पे कर्जा कैसे। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में केस टेकिंग में आना ही चाहिए। 22 साल के लड़के को आपने कर्जा है तो आप अच्छा कितना कर्जा है, अच्छा 15 लाख का कर्जा है, ये मत सोचो। 22 लाख अपना 22 साल के बच्चे को लोन क्यों है, एक क्वेश्चन पूछना जरूरी है। नाउ दिस इज एन आर्ट। मैंने पूछा उसको सर कि यार तेरे पे कर्जा कैसा। पापा का कर्जा है। बोले मतलब पापा का है ना, अभी तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा एजुकेशन चल रहा है और तू वो कर्जे को लेके इतना टेंशन ले रहा है।
उनका जो नेचर है ना, बोले सर उनकी नेचर की वजह से ये कर्जा हुआ है, तो मैंने अभी डिसाइड किया है सब मैं मेरे हाथ में लूंगा और सब ये जो मैटर हुआ है, जब जो रायता फैला है मैं सीधा कर लूंगा। मतलब तेरा एजुकेशन चल रहा है, तू क्या सीधा करेगा, तेरे पापा देखेंगे। मेरे पापा देख रहे थे, इसी की वजह से इतना कर्जा हुआ है, समझ गए, उसी की वजह से कर्जा हुआ है। मतलब क्या हो, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, वो बहुत सीधे है बोले सर, उसकी वजह से कर्जा हुआ है, सीधे है। ओके, बोले जमाना बहुत बुरा है बोले सर। बोले तेरे साथ क्या हुआ? एक मिनट, जमाना बहुत बुरा है, राइट इट डाउन, लिख लो। जमाना बहुत बुरा है। वो उसके ट्रैक पे चला गया, मुझे उसको खींचने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी। और ये जो केस मैं बोल रहा हूँ, बिलीव मी, आपके क्लिनिक में ये केस आपको ज्यादा नहीं पर हफ्ते में कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स मिलेगा। लिख लो ये चीज, लिख लो, जस्ट बिलीव मी माय फ्रेंड्स। यस मेरी स्टाइल मार रहा है वो अभी, ये लिख लो ये केस मिलने वाला है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। एक्चुअली क्या होता है ना कि सर जो बोले सेंसिटिविटी का टॉपिक, तो सेंसिटिविटी नहीं होगा ना तो आपको ये चीज समझेगी नहीं। होम्योपैथी के अंदर, होम्योपैथी को क्या बोलते हैं, इट्स आर्ट। और अनफॉर्चुनेटली ना आर्ट सिखाया नहीं जाता है। वी कैन नॉट टीच होम्योपैथी। यस, हम सिखा नहीं सकते, वो आपको सीखना है अंदर से, तभी जाके आप समझ पाओगे। और होम्योपैथी में क्या है ना कि सेंसिटिविटी मैच होना चाहिए तुम्हारा और वो पेशेंट का, तभी जाके तुम उसको समझ पाओगे। उसके लिए हम क्या बोलते हैं ना, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्ट होनी चाहिए, उसका थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस कनेक्ट होने चाहिए। ये सब मास्टर के डायलॉग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है ना, अपने को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है जब हम लोग केस लेते हैं। अपने आप क्वेश्चंस, डू यू एग्री? यस, अपने क्वेश्चन में से बाहर आ जाए। तो स्टूडेंट सर ये आपको ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मतलब मुझे नहीं मालूम। दिस इज दैट सेंसिटिविटी। यस, वो सेंसिटिविटी की वजह से जब आप ये चीज कैसे आएगी, तो उसके ऊपर एक एग्जांपल बोलता कि जस्ट पुट योर फुट इन शूज ऑफ पेशेंट, तो आपको सब सवाल समझेंगे। कंपैशन। ओके, तो उसका कर्जा मैंने मेरे ऊपर ले लिया और मैं समझ लगा कि यार इतना छोटा बच्चा और उसको इतना ये सब जहर कहाँ से आ गया, जमाना बुरा है, ऐसा है वैसा। मैंने मेरे पापा का लोगों ने यूज कर लिया, बोले यूज कर लिया, राइट, पापा का ये वर्ड लिखो फिर से, यूज कर लिया। उनसे बहुत सारी चीजें सीख ली और वो खुद के बिजनेस में अप्लाई कर दी, और ये पीछे पड़ गए, वो लोग आगे निकल गए। ऐसा सब चल रहा था केस में। तो मैंने सबसे पहले मैं बोला कि इनिशियल लेवल में, इनिशियल 2 to 3 मिनट्स में मेरा केस हो गया था, फिर मैं उसको खींच रहा था कि यार क्या चल रहा है। ये जो रेमेडी है ना, अभी रेमेडी पे बात कर, हाँ अब मजा है। रेमेडी जो है ना, एक्चुअली ये बनी है एक पॉइजनस फ्रूट से, वो बेरी है, अंडरस्टैंड। और इसकी खासियत क्या है मालूम है, ये बेरी जब आप जो कच्चा होता है उसको कच्चा खाओगे, वो बेरी को, इट बिकम पॉइजनस। और वही बेरी जब पक जाएगी, रेड हो जाएगी, तो ये दवाई बन जाती है। अभी ये समझो, ये चीज समझो, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। सो वी इन एचएचएफ not only follow the mind makeup, we understand the physicals also. These physical symptoms should be connected with the mentals. Only then that is the simillimum. So क्या करना है अपने को, अभी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग डॉक्टर सब कुछ देख के हम लोग एक रेमेडी पे आते हैं। yes, exactly. अंडरस्टैंड, वो जब कच्चा होता है तो पॉइजन होता है, और जब पक जाता है तो मेडिसिन होता है। अभी इसका अंडरस्टैंडिंग समझो। और मेडिसिन किस लिए होता है मालूम है? पॉइजनिंग के लिए मेडिसिन होता है। वही बंदा पॉइजनिंग के लिए मेडिसिन हो जाता है। और क्या हो गया ना, अब ये बच्चे में जो था ना, कि आप बोलेंगे इसमें क्यों आ गया, तो इसका जो सोल है ये रेमेडी का, इसेंस बोलो, सेंटर बोलो, सेंटर, कोर बोलो, कुछ भी बोलो, आप उसको की नोट भी बोल सकते हैं। की नोट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी ऐसा जो बोलते हैं ना, कि ये चीज जो है उसकी, तो वो थी एक्सप्लॉइटेड। उसके अंदर एक रूब्रिक है कंप्लीट रेपर्टरी में, एक्सप्लॉइटेड फीलिंग।
एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेड फीलिंग। एक्सप्लॉइटेड को समझो पहले। वो चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या हो जाता है ना, अब ये बच्चे में लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं ये चीज को, आज तक ये रेमेडी इतनी अच्छे से क्यों नहीं समझ पाए। एक्सप्लॉइटेड का मतलब इंग्लिश में अगर डिक्शनरी पढ़ोगे तो उसको उसे बोलते हैं सेल्फिश यूज, यानी मेरे मतलब से मैंने इसको इस्तेमाल किया, मेरे मतलब से। लेकिन अभी आप बताओ, आप किसी जिनके पास क्वालिटी नहीं है उनको एक्सप्लॉइट करोगे क्या? नहीं। किसको करोगे एक्सप्लॉइट? जिसके पास अच्छा नॉलेज है, जिसके पास अच्छा अकल है, जिसके पास कुछ अच्छे अच्छे क्वालिटीज है, उसको ही तो तुम लोग एक्सप्लॉइट करोगे ना। yes. अगर मैं एक राजा हूं तो मैं किसको एक्सप्लॉइट करूंगा? जिसको बहुत अच्छा अक्ल है, हु इज अ गुड प्लानर, हु इज दिस, हु इज दैट, उसको सब कुछ आता है, उसको एक्सप्लॉइट करूंगा। exactly. आम आदमी को एक्सप्लॉइट कोई नहीं कर सकता। तो ये आम आदमी नहीं है, ये थोड़ा होशियार है, नॉलेजेबल है, नॉलेजेबल पर्सन है, नॉलेजेबल बंदा है, अच्छे अच्छे क्वालिटीज है। बट क्या है ना, ये जो रूब्रिक है ना, इट्स अ फीलिंग, इट्स नॉट डिल्यूजन। इसमें सबसे मेन क्रक्स ये है, इट्स नॉट डिल्यूजन। डिल्यूजन जो होता है ना वो खुद के लिए होता है, एंड फीलिंग है ना, ये जो चीज है, ये मेरा दोस्त है और इसको इसके कंपनी में इसका यूज करके उसको निकाल दिया और उसकी तकलीफ मुझे हो रही है। मेरे केस में एग्जैक्टली क्या था ना, यूज किसका हुआ था? उसके पापा का हुआ था। इसका हुआ था क्या? इसका नहीं हुआ ना, इसका नहीं हुआ, फिर भी इसको तकलीफ हो रहा है। अंडरस्टैंड? अभी अब समझ रहे हैं कि क्यों नहीं मिलता ना दवाई लोगों को। ये फीलिंग किसी के लिए भी आ सकता है, किसी को भी। इनका एक्सप्लॉइशन हुआ और मुझे फीलिंग आया, यार तुम्हारा यूज होगा, यार लोग यूज करते हैं तुम्हारा, और उससे मुझे एलिमेंट आ गया। ये भी टैक्सेस है। वो इतना सेंसिटिव बंदा है, ये समझो, ये सेंसिटिविटी को समझो। वो उसको किसी को इसको अच्छा नहीं लगता है। तुम लोगों को मैंने एक यूट्यूब में मैंने एक सेंटेंस डाला था, एक पेशेंट ने मेरे को बोला था, यशवंत, कि मैंने बोला, उसने क्या बोला मुझे मालूम है, सॉल्ट बोला, एक क्या बोला था उसने, डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है? अच्छे लोगों के साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, सिर्फ बुरा लोग होते हैं ना उनका ही अच्छा होता है, अच्छे लोगों का हमेशा बुरा ही होता है। Delusion wrong suffered he has. Understand? तो ये आप जब एक्सप्लॉइटेड समझोगे, ये डिल्यूजन नहीं है, इसकी वजह से लोगों को लगता है कि यार ये तो फालतू ही इसके बाप का प्रेशर ले रहा है, इसको ईगो है, एटीट्यूड है। नहीं, वो बंदा सेंसिटिव है बहुत, भले ही पॉइजनस है पर वो सेंसिटिव है। ये बात समझो। जहर वहीं पे बनता है जहां पे ज्यादा प्यार हो जाता है। वो कॉन्शियसनेस का ऐसा कुछ रूब्रिक तूने? हाँ, एक रूब्रिक है उसमें। सर ने जो अभी बोला कि अच्छे, जो पेशेंट ने बोला कि अच्छे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता है, पर इसका मतलब उसने सुना होगा ना पहले कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। अंडरस्टैंड? वो एक मॉरल है ना कि अच्छा करो, अच्छा हो। और फिर वो रॉन्ग सफर में जाने के बाद वो क्या सोचते हैं? उसको एक्सप्लॉइटेड फीलिंग आ जाता है। और उसमें एक रूब्रिक है, conflict between higher conscience and worldly existence. Higher consciousness and worldly existence. Actually क्या है कि जो higher conscience क्या है ना, higher consciousness क्या है ना कि बाबा सब अच्छा करो, अच्छा चलेगा, अच्छी बात करो तो अच्छा होगा, ये सब चलता है और वो सीखते आता है उसकी जिंदगी में। कॉन्शियसनेस जो वर्ड है ना, वो मेडिटेटिव वर्ड है, स्पिरिचुअल वर्ड है। कॉन्शियस नहीं, आई एम अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, वो वाला कॉन्शियस नहीं है। कॉन्शियस का मतलब इस इटरनल वर्ल्ड का जो कॉन्शियसनेस होता है, वो स्पिरिचुअल वर्ड है, उसके बारे में वो उसको लगता है। और ये जो डॉक्ट्रिन के बारे में सोचेंगे तो ये जो ट्री है ना, ये चर्च के पास आता है, इसलिए उसमें वो स्पिरिचुअलिटी है उसमें। अंडरस्टैंड? ये स्पिरिचुअलिटी वहां से आई है। तो ये बंदे को क्या लगता है कि यार इतना मैं सब अच्छा हूं, मैं अच्छा सोच के बड़ा हुआ हूं, अच्छा काम करके बड़ा हुआ हूं, और मेरे साथ क्या हो रहा है? ये नहीं अच्छा, दिस इज नॉट डन सर, दिस इज नॉट डन। ये मेरे साथ क्यों ऐसा होता है यार? ये हो गया रॉन्ग सफर्ड। ये रॉन्ग सफर्ड हो गया, रॉन्ग सफर्ड हो गया। एग्जैक्टली, ये रॉन्ग सफर्ड हो गया। अच्छाई का भला जमाना ही नहीं रहा। जमा नहीं सर पूरी, डॉक्टर साहब मैं सबको मदद करता था,
अभी साला जो मदद करते ना वो तो ऐसे मुंह फेर के जाते ना जैसे कि तो लगता है इतना साला गुस्सा आता है। अब मेरे सामने कोई मरने वाला आदमी भी सामने आने दो मदद करने को, साला मैं उसको देखूंगा भी नहीं। इतना टॉक्सिन्स भरा है। रूब्रिक है ऐसा कुछ, नॉट वांट टू हेल्प अदर्स, ऐसा कुछ क्या हेल्पिंग एवर्जन टू हेल्प अदर्स। ये बंदे में हेल्पिंग एवर्जन टू हेल्प एवर्जन है, यानी पहले करता था अभी नहीं चाहिए। मतलब पहले करता था इसलिए अभी नहीं करना है। मतलब ये बहुत अच्छा बंदा रहता है पर इसकी वाट लगा दी। अभी ये जो पूरा लेक्चर हुआ उसमें जो वर्ड्स यूज हुए, अच्छे के साथ अच्छा नहीं होता है, वाट लगाते हैं, ऐसा होता है। सर ने भी अभी एक वर्ड बोला कि भलाई का जमाना नहीं रहा। ये वर्ड आप दिन में कितने लोगों के मुंह से सुनते हो? और सोचो वो सब टैक्सेस, और उसके साथ क्या खुद पॉम्पस, खुद शाना, थोड़ा शाना समझते हैं वो। यस मेरे पास बहुत ज्यादा क्वालिटीज है, उसके पास वेल्थ है उसके पास वेल्थ है। डॉक्टर साहब मेरे नॉलेज, इतना नॉलेज है ना, जिसके पास वेल्थ है उसको तो एक्सप्लॉइट करेगा ना कोई। इसी के तो क्या बोला ना कि बोलते ना डॉक्टर, कितने लोग आप भी सोचो आपको कि डॉक्टर साहब ने मेरे पास ना, मैंने सब ना, मैं अभी तक कहाँ होता था, लेकिन सर ने मेरे को सबसे यूज कर दिया, चूज लिया मेरे को, तो बाकी वो निचोड़ लिया। यूज एंड थ्रो, पॉलिस्टरीन बिलिस्टरीन सोचो भी मत, उसके आगे पीछे भी नहीं है। पॉलिस्टरीन है फालतू, ये कचरा का डिब्बा, उसमें कुछ है ही नहीं। वो उसका उठाया, उसमें से जो मटेरियल लिया उसको पॉलिथीन को फेंक दिया, ऐसा कुछ है। यूज एंड थ्रो ऐसा नहीं है। इसका अकल, क्वालिटीज को यूज किया, दैट इज द फीलिंग ऑफ टैक्सेस। और ये खुद के लिए उसका ही क्वालिटी यूज हुआ तभी उसको आएगा एलिमेंट, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके फ्रेंड का यूज हुआ तो भी आएगा, उसके मम्मी का यूज हुआ, उसके पापा का, उसके भाई का। क्योंकि ना वो बंदा भी अटैच्ड होता है। अभी मेरे बाप को अगर किसी ने यूज किया तो कुछ लोग बोला बाबा छोड़ो ना, अभी क्या होगा ना सर, मेरे बाप को यूज किया, अगेन रिवेंज भूल जाता है मेरे, अगेन टैक्सेस बाकाटा। अब रेमेडी, आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, कितने केसेस हम लोगों ने ऐसा भी बोल दिया ना कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं सर, चांस मिला ना तो उसकी वाट लगाऊंगा, बस दे दो टैक्सेस, कुछ मत। अरे दिस टॉक्सिन, नाउ हाउ टू वी कनेक्ट द माइंड बॉडी इन दिस टॉक्सिन। अंदर पॉइजन है तो दिस इज अ सिफिलिटिक रेमेडी। पॉइजनस है, डिस्ट्रक्शन है। अरे क्या बोलेगा, तोड़ने मोड़ने की बात करेगा साला, ऐसा कुछ है। डिस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स, नॉट थिंकिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, डिस्ट्रक्शन, हेंस सिफिलिटिक रेमेडी। डीप एक्टिंग, सर्दी खांसी उहू है, डायरेक्ट 9 सेंटीमीटर का स्टोन, 9.5, ऐसा बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी होती है टैक्सेस। तो टैक्सेस को भूलना नहीं। अरे राव सर्ट के डे हम लोगों ने ये, एंड दिस मैन हैज अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ exploring remedies and rubrics in a very different way. तो और कुछ वीडियोस हम लोग बनाएंगे बाद में बनाएंगे। एंड दिस एनिमल लुक इज वंडरफुल। और कुछ बोलना है टैक्सेस के बारे में? टैक्सेस के बारे में थोड़ा एक फिजिकल के लेवल पे। हाँ चलो, फिजिकल लेवल पे ना, वो क्या उसके अंदर एक्चुअली ये रूमेटिज्म के लिए, गाउट रूमेटिज्म, इसके लिए यूज करते हैं। तो साइकोडायनेमिक्स के हिसाब से गाउट्स एंड रूमेटिज्म कब होता है, किसी भी बंदे का, जब उसका प्रोग्रेस रुक जाता है। प्रोग्रेस रुक जाना, या तो अटक जाना, या तो स्टक हो जाना किसी जगह पे, या तो स्टिफ होना। स्टिफ का मतलब जॉइंट स्टिफ होते हैं ना, क्या हो जाए, रुक जाना, स्टिफ होना, ये सब चीजें समझो। अभी स्टिफ होना, रुक जाना, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होना, अंडरस्टैंड? ये कब होगा ना? एक मिनट, ये सब बुक में लिखा है, थर्ड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अगर तुम लोगों को, मुझे मालूम है तुम लोग पढ़ते हो, थर्ड आई पढ़ो, फिर भी बोनस। हाँ तो ये फिजिकल कितना खूबसूरत है। देखो ना कि फिजिकल लेवल पे भी वही एलिमेंट है जो माइंड में है। क्या होता है ना, वो बंदा लिक्विडली सब काम करते रहता है, सब चलते रहता है, वो स्टक होगा, उसका साइनोवियल फ्लूइड स्मूथली फ्लो होते रहता है, लेकिन क्या होता है, स्टक हो गए। स्टक होने के बाद स्टीफ हो गए। सर ने बोला ना कि स्टीफ, जो पहले सबको हेल्प करता था, सबसे प्यार से बात करता था, अब अकड़ गया। नाउ आई डोंट। मेरा एक पेशेंट था, वो क्या बोला था, डॉक्टर साहब क्या चीज बोलूं मैं आपको, उसने उसके बड़े भाई के लिए बिजनेस चालू करने के लिए, इसने उसका खुद का प्लॉट, खुद
खुद का प्लॉट दे दिया भाई को, बोला कि चल इसके ऊपर तू लोन ले ले, मॉर्गेज करने के लिए इसने उसका खुद का प्लॉट दे दिया, और भाई ने वो लोन ही चुकाया नहीं, वो बैंक के इसमें चला गया प्लॉट। अब समझो, तो वो बंदा जब मेरे पास आया तो मैंने बोला कि अभी भी तुझे ऐसा लगता है कि तू हेल्प करेगा लोगों का? सर मैं बोलूं कि एक चीज आपको, कोई मेरे सामने मरता रहेगा ना, तो मैं मेरा पिछवाड़ा धोऊंगा पर उसको पानी नहीं पिलाऊंगा। मैं थोड़ा सा आवाज जोर से, ये बात देखो, ये सेंसिटिव होता है बंदा, इतना सेंसिटिव होना चाहिए। कोई मरता रहेगा ना मेरे सामने, हाँ बोलो जरा जोर से। हाँ, कोई मरता रहेगा मेरे सामने तो मैं उसको पानी नहीं पिलाऊंगा, मेरा पिछवाड़ा धोऊंगा, पानी तक नहीं पिलाऊंगा, पानी तक नहीं पिलाऊंगा। ये है टैक्सेस। अभी यशवंत, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करेंगे। उसके साथ डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही है, वो भी करोसिव है, वो भी एसिड है साला। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल टैक्सेस को समझो, नाइट्रिक एसिड नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, है ना। सो अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड होम्योपैथी। हैप्पी राव डे टू ऑल माय HHFians, my homeopathic friends, my students. We in HHF have a special affinity towards my students who are eager to learn homeopathy, to grow. So don't miss these videos. Share to the ones who are really interested to understand homeopathy in a very different angle with the mind, body and the soul axis. हर चीज में ध्यान रखनी, पर सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। राव सर के डे, राव डे, on this occasion of राव डे, I used to always, राव सर used to tell us कि मायड्या साला ना, लोकांना जेव्हा सेंसिटिविटी कळेल, जब लोगों को सेंसिटिविटी समझेगी ना, तो ही उनको होम्योपैथी समझेगी। नहीं तो जब तक होम्योपैथी तुम लोग 1+1=2 करके रखते हो ना, तो होम्योपैथी नहीं जमेगी। होम्योपैथी इज नॉट 1+1, इट इज नॉट अ कैलकुलेशन, इट इज नॉट अ लॉग, it is not in a square, it's not in any shape, it has no shape, no dimensions, it is absolutely dynamic, just like the vital force. We cannot see that perception, you have to perceive that. Yes. That sensitivity you have to develop. कुछ लोगों में होती है, अभी इसमें तो भर के, हमारे में भर डाला हुआ तो सेंसिटिव खुद नहीं बाहर आता है, सेंसिटिविटी बाहर आता है। इतना सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो ये इसको डेवलप करो आप, सब में है, वो डेवलप करना है। सिर्फ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंट्रोस्पेक्ट। फॉर दैट, इफ यू, लास्ट डायलॉग बोलता हूँ सर का था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस, वो वाला इंटेलिजेंस नहीं, रट्टा वाला इंटेलिजेंस है जो ऊपर से आता है, दैट इंटेलिजेंस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी कंपैशनेट एंड लव एंड कंपैशन से ही इंटेलिजेंस आएगा। जो में हम लोग सेंसिटिविटी के बारे में कर रहे हैं, वो लव एंड कंपैशन से आएगा। सो सेइंग सो, हैप्पी राव डे। यशवंत पाटिल, आपसे तो मैं बहुत रेमेडीज उगवा लूंगा। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ciao. Happy Rav Day to all my dear friends. Thank you all and love you all. Bye. Bye.